Hello, I am R.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I have brought a class of mathematics for the student of class 9th, and the chapter is lines and angles. This is part 2, NCERT exercise 6.2. Actually this exercise is based on properties of parallel lines. So first of all, in this chapter today we will learn what is parallel line, what is transversal, and what are the properties of the parallel line. So first see, just I have drawn the line AB and CD, and from those given figure, if the line AB and the line CD will produce indefinitely from both sides, then they will not meet at any time. Okay, so these two lines are parallel here. So now question is how we can define a parallel line. So two or more than two lines are said to be parallel if they do not meet on either side producing. Okay, suppose if I draw this line like this, and suppose someone will produce, then they will meet. So this is non-parallel lines. Okay, but now what is transversal? The transversal line is the line which intersect two or more than two straight lines at different points. So AB and CD are parallel lines, and if I have drawn this line T, then this T had intersect the point at this point and that point. So this line T is a transversal line. Okay, and when this T transversal line is drawn, then after intersecting the line AB and CD at 2 points, 8 angles are formed. See, this is not the degree. I have not given degree, just I have kept their name. This is the name of angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So when two parallel lines are there in a plane and they are cut by a transversal T, then total number of angles are 8. You can see in the given figure. Okay, and in this, first we'll know what is linear pair. So just in previous class already you have understood if a ray extends on a straight line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree, and those two adjacent angles are said to be the linear pair, and they give the sum as 180 degree. So very clear, angle 1, 2 will form 180 degree, 2 plus 3 is 180 degree, 3 plus 4 is 180 degree, 1 plus 4 is 180 degree, 6 plus 5 is 180 degree, 6 plus 7 is 180 degree, 5 plus 8 is 180 degree. So I have written, see, linear pairs are, so in linear pair give the sum as 180 degree, and which angle is a linear pair? So 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 1, 6 plus 5, 6 plus 7, 7 plus 8, 8 plus 5. They are linear pair. And what happens in linear pair? In linear pair, it gives the sum as 180 degree. अगर को-इंटीरियर, तो को-इंटीरियर में क्या होता है? जब दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई ट्रांसवर्सल टी काटता है, तो काटने के बाद दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में एक ही तरफ जो अंदर में दो एंगल बनते हैं उसको कोई इंटीरियर कहते हैं. क्लियर? और जो बाहर में रहते हैं एक ही साइड उसको हम को एक्सटीरियर कहते हैं. तो ये 3 और 6 क्या हो गया? को इंटीरियर. 4 और 5 क्या हो गया? को इंटीरियर. 2 और 7 क्या हो गया? को एक्सटीरियर. 1 और 8 क्या हो गया? को एक्सटीरियर. तो को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री ही होता है, और ये 180 डिग्री अगर देगा तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 और 6 का सम 180 होगा, 4 और 5 का सम 180 होगा, बट इसका नाम को इंटीरियर होगा. सिमिलरली आप कह सकते हो कि 2 प्लस 7 का सम 180 होगा, 1/8 का सम भी 180 होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? को एक्सटीरियर एंगल. तो ये लिनियर पेयर, को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल, ये तीन ऐसे प्रॉपर्टी हैं पैरेलल लाइंस का जहां सम 180 मिलता है. क्लियर?
अब हम इसके बाद देखेंगे कि इक्वल एंगल्स का क्या रिलेशन है। इक्वल एंगल्स में रिलेशन है अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट जैसे नाम ही है अल्टरनेट, कि जब कोई दो पैरेलल लाइन है और उस दोनों पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल अगर काट रहा है तो अंदर में, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में एक इधर से और दूसरा इधर से लोगे तो वो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। क्लियर। और अगर किसी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है और बाहर से आप एक इस तरफ का लेते हो और नीचे से बाहर का इस तरफ का लेते हो तो वो उसको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर कहेंगे। तो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि 2 हम इस साइड से लिए और 8 उस साइड से लिए, तो 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। और ये को इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है। मतलब जितना 2 का वैल्यू होगा उतना 8 का वैल्यू होगा, जितना 1 का होगा उतना 7 का होगा। उसके बाद आता अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर में 3 का 5, 4 का 6 मीन्स जितना 3 होगा उतना ही 5 होगा, जितना डिग्री 4 होगा उतना ही डिग्री 6 भी होगा। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 के बराबर 8, 1 के बराबर 7, अल्टरनेट इंटीरियर में 3 के बराबर 5, 4 के बराबर 6। अब बचता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब हुआ कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, मतलब एक लाइन के ऊपर लेंगे, एक तरफ से ऊपर वाले लेंगे। जैसे 2 और 6 लिए, 3 लेंगे तो 7 होगा, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 5 होगा, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग 8 होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा? 2 के बराबर 6, 3 के बराबर 7, 1 के बराबर 5, 4 के बराबर 8। क्लियर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होता है। जैसे ये ऐसे अगर हम इसको किए तो ये दोनों बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और इसको हम क्या कहेंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो 2 का कोण होगा 4, 1 का क्या होगा 3, 6 का क्या होगा 8, 5 का क्या होगा 7। तो हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ये जो प्रॉपर्टीज है, तो पहले आपको इस प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा कि लीनियर पेयर, उसका फिर को इंटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स में दो पेयर, एक पेयर बनते हैं दो एंगल्स के जहां सम 180 होता है। ये 180 सम रिलेशन देता है। फिर इक्वालिटी एंगल्स में आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये इक्वल रिलेशन देता है मैग्नीट्यूड का, तो ये आपको याद रखना है। और इसी प्रॉपर्टी बेसिस पर अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 के 6 क्वेश्चन हैं। मैं सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ बना के समझाते हैं, आप इसको समझेंगे तो ये प्रॉपर्टी खुद समझ में आ जाएगा। फिर आप इसको अगर बनाएंगे अपने से तो फिर आपको क्वेश्चंस बन जाएगा। तो आप देखिए, आते हैं हम बनाते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि AB और CD दो पैरेलल लाइन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का, और इसमें दिया है कि AB और ये CD पैरेलल लाइन है जिसको ये लाइन काट रहा है, दोनों पैरेलल लाइन को, जहां ये एंगल 50 दिया है, ये 130 डिग्री आपके क्वेश्चंस में दिया है, ये x दिया है और ये y दिया है, और हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो अभी मैं बताया ये दोनों एंगल्स क्या बना रहा है? लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम 180 होता है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होना चाहिए। तो हम x कैसे निकालेंगे? तो x निकालने के लिए 180 से 50 को आप माइनस कर दोगे तो ये कितना मिल जाएगा? 130। तो ये 130 मिल गया। अब ये y निकालना है, और याद रखिएगा कि x का वैल्यू मैंने अभी 130 निकाला है। अब ये 130 दिया है और हमको y निकालना है,
तो सबसे एक चीज और याद रखना है कि जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस बनाएंगे या कोई भी क्वेश्चन हम बनाते हैं मैथमेटिक्स में, तो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि आपका एप्लीकेशन सही होना नहीं चाहिए। और अगर हम एप्लीकेशन सही यूज करेंगे तो आंसर सेम ही आता, किसी भी एप्लीकेशन से हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स आते हैं। अब जैसे किसी ने क्या किया कि y को सीधा निकाल लेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो y मिल गया उसको, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहा है। या किसी को इच्छा हुआ कि नहीं हम इस रिजल्ट से नहीं बनाएंगे, तो वो क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर, जो कि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो रहा है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, इसलिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो जब अभी हमने x 130 निकाला और x और y बराबर होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसीलिए आप इस रिजल्ट से भी निकाल सकते हो। तो या तो आप वर्टिकली से निकालो या अल्टरनेट इंटीरियर से निकालो, आंसर कितना आ रहा है 130 डिग्री, आपको y भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखिए x का भी वैल्यू 130 हो गया और y का भी वैल्यू 130 हो गया, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ ABCDEF 3 पैरेलल लाइन दिया है। अगर ये तीनों पैरेलल लाइन है और इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल। तो अगर एट ए टाइम में 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइन दे दिया, तो आप एक बार में किसी 2 पैरेलल लाइन पर काम करोगे। ठीक है, अब ये नहीं कि तीनों को एक ही बार में देखोगे। अभी अगर देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, अभी हम थोड़ा देर के लिए CD को इग्नोर करते हैं, हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ AB और EF ही 2 पैरेलल लाइन है। अगर ये AB और EF अगर पैरेलल लाइन है तो x के बराबर क्या होगा, z, क्योंकि x और z क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। इस क्वेश्चन में y और z का रेशियो 2:3 दिया है, तो y और z के रेशियो, इसका मतलब z के बराबर x है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि y और x का रेशियो, तो चूंकि यहाँ जो y लिखा है तो y के बराबर x है, तो इसको हम चूंकि लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू z, सिंस y रेशियो z इज इक्वल टू 2:3, सो दिस कैन बी रिटेन x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3, हमने लिख दिया। अब हम लेट करते हैं कि लेट हम x को 2a मान लेते हैं, मान लिए, और y को हम 3a मान लेते हैं। तो जब हमने x को 2a मान लिया और y को 3a मान लिया, तो x और y क्या, यहाँ को इंटीरियर एंगल्स बन रहा है, और को इंटीरियर का सम 180 होता है, इसलिए लिखेंगे कि 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 5a इज इक्वल टू 180, तो a बराबर 180/5, तो ये 36 डिग्री, ये a का वैल्यू मिल गया हमको। a तो मिल गया, अगर ये a मिला तो x बराबर 2a था, यानी 2 इंटू 36, यानी ये 72 डिग्री x मिल गया, और 3 इंटू 36 यानी 108 डिग्री हमको y मिल गया। तो क्वेश्चन था कि x क्या होगा, तो x कितना है 72 डिग्री। इस तरह से हम इसमें x भी निकाल लिए। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि AB और ये CD ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखिए ये अगर पैरेलल लाइन नहीं भी लिखा हो फिगर में, अगर ये ऐसे एरो लगा दिया, इसका भी मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें ये EF परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, और ये GED 126 डिग्री दिया है। तो GED का मतलब ये पूरा 126 है, जिसमें ये कितना है 90 डिग्री। इसी 126 का पार्ट ये 90 है। अगर ये 90 और ये पूरा 126 है, तो ये कितना हो जाएगा 126 में से हम 90 को माइनस कर देंगे तो ये 36 डिग्री, यानी हम ये निकाल लेते हैं 36 डिग्री। ये एक आंसर मिल गया। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो GEF क्या है, एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये तो आप बहुत पहले से ही जानते हो, 6, 7 से ही जानते हैं। तो अब ये एक ट्रायंगल अगर है तो इस ट्रायंगल्स में 2 एंगल हमको मालूम है, एक 90 और एक कितना 36 है। तो हम 90 को और 36 को अगर हम जोड़ दें तो 90 में कितना आ जाएगा 126। इट मीन्स दोनों का सम 126 है।
तो जब इस दोनों का 126 है तो फिर ये कितना निकलेगा, तो 180 में से 126 को माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा 54 डिग्री, ये निकल गया। क्लियर। दूसरा, अब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, अब ये कितना होगा, तो इसको फिर 54 को हम 180 से माइनस करेंगे तो ये 126 डिग्री हो गया। तो इस तरह से AGE कितना 126 हो गया। लेकिन अभी हमने AGE लीनियर पेयर से निकाला, अब डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये एंगल्स और ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर, सीधा आपको आ जाता है, इसमें आपको कम मेहनत करना पड़ता। ठीक है, ऐसे आपको देखिए अभी दो रिजल्ट मैं भी बताया, या तो आप अल्टरनेट इंटीरियर से लाओ या आप लीनियर पेयर से लाओ, आंसर क्या आपको सेम आएगा। इस तरह से ये एंगल्स और ये एंगल्स हमको निकालना था, और ये तीनों एंगल्स क्या निकल गया। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में तो ये फिगर दिया है, इस फिगर में आप देखिए कि ये ST और ये PQ दोनों पैरेलल है एक दूसरे का, जहां ये PQR 110 डिग्री दिए हैं, RST 130 दिया है, और आपको QRS निकालना, मतलब ये एंगल हमको निकालना हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन सही है कि अगर हम इस पॉइंट से एक और लाइन अपने मन से ड्रॉ कर दें, ताकि ये जो लाइन होगा वो तीनों का, ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल, इसका मतलब तीनों आपस में क्या पैरेलल हो गया। अब मैं बताया था कुछ देर पहले कि जब 3 लाइन आपके पास हो गया तो किसी 2 पर एक बार में काम करो। चलिए पहले हम अगर इसी दोनों पर काम करें तो ये एंगल और ये एंगल मिला के कोई इंटीरियर बन रहा है। अब कोई इंटीरियर का सम 180 होता है, तो जब ये 130 है तो ये 50 डिग्री निकल गया। सिमिलरली ये दोनों अगर पैरेलल है, इस कोई इंटीरियर का भी सम 180 होगा, तो जब ये 110 है तो ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है। दूसरा, अब हम ये प्रीवियस क्लास में पढ़े कि जब किसी भी लाइन पर जब आप रे खड़ा करते हो तो लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं सब के सम 180 होते हैं, तब तीनों एंगल मिला के कितना होगा 180 होना चाहिए। जिस 180 में एक 70 है एक 50 है, तो 70 और 50 मिला के 120 हो गया। अब 180 से 120 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम कहेंगे कि QRS 60 डिग्री हो गया, तो आप इसको बना सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5 में दिया है इसमें A और B, AB और ये CD जो है ये आपस में पैरेलल है। तो हम इस PQ को क्या कहेंगे, एक ट्रांसवर्सल है, और ये PR भी क्या ट्रांसवर्सल बनेगा। और अभी हम जानते थे क्या प्रॉपर्टी में क्या समझे हैं कि जब किसी भी 2 पैरेलल लाइन का कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो इस 50 का ये 50 क्या होगी, ये x कितना हो जाएगा 50 डिग्री। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। अब ये दोनों का सम कितना, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, तो आप इसको 180 से 127 को माइनस करोगे तो फिर आपको ये निकल जाएगा। तो ये कितना आ गया 53 डिग्री। सिंपल हो गया। अब ये PQR एक ट्राइंगल बना रहा है जिसमें 2 एंगल्स आपको पता है, तो ये थर्ड एंगल Y निकालना है। तो 50 को और 53 को अगर हम ऐड करेंगे तो 103 होगा। अब उस 103 को 180 से माइनस करो तो ये 77 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। या और दूसरा मेथड भी हम यूज कर सकते थे, क्योंकि ये 127 है तो ये पूरा 127 होगा। इस 127 में से 50 पार्ट को आपने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग कितना 77 हो जाएगा। तो अभी भी फिर मैंने आपको क्या दिखाया, या हमने एप्लीकेशन चेंज भी कर दिया, बट राइट एप्लीकेशन था, तब भी आंसर क्या वैरी नहीं किया, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ये जो लाइन डॉटेड लाइन देखते हैं ये पॉलिश सरफेस को डिनोट कर रहा है। तो इसमें दिया है कि PQ और RS 2 मिरर है जिसको एक दूसरे के पैरेलल में रखा गया है, और ये एक AB एक इंसिडेंट रे है जो इस मिरर पर फॉल होता है, और B पर फॉल होने के बाद फिर यहां से रिफ्लेक्ट करता है। तो इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, बट इस मिरर के लिए इंसिडेंट रे हो गया, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ये AB इंसिडेंट है,
ये रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर के रिस्पेक्ट में, बट इस मिरर के रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो थोड़ा देर के लिए अगर ये दोनों पैरेलल है तो हम सीधा कहेंगे कि ये बीसी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गया। इसीलिए पूरा एंगल्स इस पूरे एंगल्स के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा कि अगर ये बराबर है तो यहां से अगर हम यहां एक लाइन ड्रॉ कर दें तो हम क्या जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 8 में भी आप पढ़े हैं कि ये एंगल्स और ये एंगल्स बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो 1 के बराबर 2 है और 3 के बराबर 4 है। दूसरा है कि ये 90 डिग्री, ये भी, तो ये दोनों भी पैरेलल है। तो जब 1 के बराबर 2, 3 के बराबर 4, तो फिर 2 और क्या 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 भी क्या बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी क्या बराबर होगा, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो जब यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि ये लाइन और ये लाइन भी क्या पैरेलल होगा। इसीलिए कहा जाएगा कि ए बी और सी डी भी क्या पैरेलल है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ज्योमेट्रिकल, तो सबसे पहले मैं पिछले क्लास में बताया था कि पहले आप गिवन लिखो, फिगर बना लो, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया आप उसको गिवन में लिखो, फिर टू प्रूव दैट लिखो, फिर प्रूफ लिखो, जरूरत पड़ता तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। देन फिर हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे और आप राइट एप्लीकेशन यूज करोगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखोगे, क्या थ्योरम इसमें कौन सी बातें इसमें हमें यूज करना है, क्या उसके प्रॉपर्टी होते हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, और एसजीएम को भी याद रखना, जो कि पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू एक्यूरेट ज्योमेट्री, वो भी याद रखना है। खासकर 9th में या इवन और भी हायर एजुकेशन में भी आपको एसजीएम और पोस्टुलेट की जरूरत पड़ती है। तो आप इसको याद करेंगे और फिर अभी जो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया, आप इसको फिर वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको बनाइए तो आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।